السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عشاء افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 19 کا چوتھا حصہ۔ وہ کچھ سامان لوڈ کروا رہے تھے جب ان کے نمبر پر ایک فائل موصول ہوئی تھی۔ انہوں نے کھول کر دیکھی تو پریشانی کے مارے ان کا چہرہ سفید ہو گیا۔ کون ہو تم؟ انہوں نے فوری اس نمبر پر رابطہ جوڑا تھا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے باوجود ان کا لہجہ کچھ کپکپاتا ہوا تھا۔ تمہارا ہونے والا داماد؟ شوخی شرارت بھری ہوئی تھی اس کے لہجے میں۔ بکواس بند کرو۔ ابراہیم کے اندر آگ جلی۔ پریشان ہو اسی لیے معاف کر رہا ہوں، ورنہ اس لفظ پر تمہاری زبان کھینچ سکتا ہوں۔ اس نے بس ذرا سی آشنائی دلائی تھی۔ کیا ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ برہان کمال کی خصلت کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ صلح جو لہجہ تھا۔ برہان کا کہکا ابھرا۔ اپنی بیٹی کو راضی کرو، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی معصوم سی خواہش تھی اس کی۔ میری بیٹی کا نام مت لیا کرو برہان کمال، بخدا تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے جان سے مار دیتے۔ مگر برہان کو مارنا کتنی دنیا سے پرے کی خواہش تھی۔ وہ آئینے کے سامنے آیا اور اپنے بال سیدھے کیے۔ کمبخت اس ہیئر اسٹائل میں پورا ہیرو دکھتا تھا۔ اگر اس کے اعمال کچھ درست ہوتے تو وہ یقیناً اس کہانی کا ہیرو ہوتا۔ مگر یہ حسرتیں۔ یہ فائل میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو بھیجنے والا ہوں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ التجا خاصی دھمکی بھرے لہجے کے بھیس میں تھی۔ برہان استہزائیہ مسکرا دیا۔ اسے میرے بارے میں معلومات فراہم کرتے وقت تمہیں ایک بار سوچنا چاہیے تھا۔ اب تم بھگتنا۔ اسے کنزا کی وہ بے یقین نگاہیں نہ بھولتی تھیں۔ کئی بار وہ خواب میں اسے صفائیاں دیتا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اب اس کی صفائیاں ابراہیم وجدانی دے گا۔ اس کا کام ختم تھا۔ وجدانی فارماسیوٹیکل سے تقریب ہو رہی تھی۔ تمام سٹاف اور کلائنٹس مدعو تھے۔ اسے بھی وہاں جانا تھا۔ کیوں نہ اپنی کزن کے ساتھ جایا جائے؟ مگر کزن کے ساتھ جانے کے لیے اس کا میرے ساتھ چلنا بھی ضروری ہے۔ برہان، اپنے جذبات ذرا قابو میں رکھا کرو۔ اسے سونا کے ہوٹل کا پتہ معلوم تھا۔ اب وہیں جانا تھا۔ وہ باہر آیا تو اردل سے سامنا ہو گیا۔ وہ لاؤنج میں ٹہل رہا تھا، بلکہ خاصا مضطرب معلوم ہو رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم ہو میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ۔ وہ اچانک سے پھٹ پڑا تھا۔ ایسے مسائل تو زندگی میں کچھ رنگا رنگ کرنے کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ برہان نے آنکھ کا کونا دبایا تھا۔ جہاں جا رہے تھے وہاں جاؤ۔ تم سے پوچھا؟ اردل اسے نظر انداز کرتے واپس اپنے شغل میں مصروف ہو گیا تھا۔ برہان کو سخت چبھا تھا۔ اب مزید ٹہلے تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ توڑ انتظار کس چیز کا ہے؟ وہ اس کے سر پر پہنچا۔ برہان نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ تھیں۔ اسی وقت اس کی نظر سیڑھیوں پر گئی تھی۔ اسے منشا سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ وہ اردل کے کان کے پاس جھکا تھا۔ تم دونوں کا اکیلے ایک چھت تلے رہنا بالکل نامناسب ہے۔ یا اسے یہاں سے بھیج دو یا پھر اپنا انتظام کر لو۔ اور تم؟ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ میں آج یہاں کل وہاں، آنکھ دبا کر کہتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کا آئی لائنر کہیں کھو گیا تھا۔ اس کی تلاش کرنے کو بجائے نیا خریدنا بہتر تھا۔ وہ مارکیٹ تک آئی تھی۔ لائنر کے ساتھ ایک دو لپ گلاس بھی لے لیے تھے۔ آخر کو وہ اس کے پسندیدہ تھے۔ وہ باہر نکلنے لگی جب ایک لڑکی اس کے قریب آئی تھی۔ یہ تم ہو نور؟ نور نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی۔ پورے لانگ کوٹ کے نیچے لمبی شرٹ اور جینس پہنے وہ لڑکی کو جانی پہچانی سی لگی تھی۔ ماہا، اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ مشہور ہو گئی ہو تو نام بھی یوں لوگی؟ میں صرف کنفرم کرنا چاہ رہی تھی۔ تو ہوا کنفرم؟ ہاں، یہ تم ہی ہو۔ ہاں، یہ وہی لڑکی تھی، اس کی یونیورسٹی کی کلاس فیلو۔ کیونکہ دوست وہ بناتی نہیں تھی، نہ ہی بنتے تھے۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دونوں باہر نکل آئی تھی۔ ابھی تم نے کہا کہ مشہور ہوں تو بس تشہیر کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ او آئی سی، ادھر بیٹھتے ہیں۔ اس نے قریبی بینچ کی جانب اشارہ کیا۔ ضرور، وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو شہرت پا کر پرانے کلاس فیلو کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تم نے تو پوچھا نہیں، خود ہی بتا دیتی ہوں۔ میری شادی ہو گئی ہے۔ میرے ہسبینڈ کو باہر سیٹل ہونا تھا، سو مجھے اسٹڈی ویزا پر بھیج دیا۔ اسے کسی فیلو کی نجی زندگی جاننے کی بالکل تمنا نہیں تھی، مگر وہ اسے روک بھی نہ پائی تھی۔ تم تو پڑھائی سے اکتاتی تھی۔ ہاں، کیا قصہ چھیڑ دیا۔ پڑھنا اب بھی پسند نہیں، ماں نے ناک منہ چڑھایا تھا۔ پھر ہسبینڈ کو ویزا نہیں مل رہا تھا۔ وہ ایف اے کے بعد پڑھنے بھی تو نہیں، جو ان کی اسٹڈی کا ویزا مل جاتا تو بس پھر یہ خطرہ بھی میں نے ہی مول لے لیا۔ کیا ہی خطروں کی کھلاڑی تھی۔ جرمنی ہی کیوں؟ بس انہیں اسی ملک کا خبت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسی ملک میں پلے بڑھے۔ پاکستان میں کیا حرج ہے؟ وہ صرف اپنے اندر ابھرے سوال کا جواب جاننے کی متمنی تھی۔ ارے چھوڑو پاکستان کو، اس کا کچھ نہیں بننا۔ میں اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اس تھرڈ کلاس ملک میں نہیں گزار سکتی۔ اتنی توہین! کوئی اپنے ملک کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتا تھا؟ نور نے مٹھیاں بھیجی۔ ماں، اپنے ملک کو تھرڈ کلاس کہنے والوں کو دوسرے ملک والے تھرڈ کلاس کہتے ہیں۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا تو نرم بھی نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ وہاں ایک پل کو گڑبڑا گئی۔ ایسا ہی تو تھا، ہر جگہ اسے تھرڈ کلاس شہریوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ کس منہ سے
ان ترقی یافتہ ممالک کی تعریف میں رتب اللسان ہوتی بھی رہی تھی۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر نور نے مزید سمجھانا چاہا۔ دیکھو، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، آپ دوسرے ممالک میں جا کر اچھے روزگار یا مواقع کو چھوڑ دیں۔ میں اس کے خلاف ہوں کہ آپ دوسرے ممالک میں جا کر اپنے ہی ملک کو ڈس آن کریں۔ تمہیں کیا لگتا ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ پاکستان کو اون کرتے ہیں؟ ایک پل کا کھیل تھا۔ زخرف کا وجود جیسے کھائی میں گر گیا۔ بچپن میں وہ اپنے بابا کے بوٹ پہن کر پورے گھر میں گھوما کرتی تھی۔ اس کے پاس چاہے اس کی پسند کا ہر جوتا ہوتا، مگر پھر بھی وہ اس کے پیروں میں آدم محمود کا ہی جوتا دکھائی دیتا تھا۔ وجہ خاص تھی، وہ ان کے یونیفارم کا جوتا تھا۔ ایک دن وہ اسے پہن کر ان کے پاس چلی آئی تھی۔ میں بھی آرمی آفیسر بنوں گی، سر پر ان کی کیپ ٹکائی جو بار بار ڈھلک رہی تھی۔ بن کر کیا کرو گی؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملک کی حفاظت۔ میں بھی کروں گی۔ اپنے ملک کی حفاظت کرنی تھی، جسم سے نہیں تو روح سے ہی صحیح، لڑکی نہیں تو الفاظ سے ہی صحیح، لڑ کر نہیں تو الفاظ سے ہی صحیح، مگر ہر صورت کرنی تھی۔ زخرف نور پاکستان کو کبھی ڈسون نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں، پھر مہا کی جانب دیکھا۔ ہم نے پاکستان کو خود برباد کیا ہے۔ دوسرے ملک کیوں؟ آج کل جس قابل انسان سے پوچھ لو کہ دوسرے ملک کیوں بیٹھے ہو تو وہ کہتا ہے پاکستان مجھے ڈیزرو نہیں کرتا۔ ہمارا اکانومی کو خراب کرنے میں بھی اپنا ہی ہاتھ ہے۔ جب ہم دوسرے ممالک کو پوری سہولیات دیتے ہیں کہ آؤ پاکستان آؤ اور بیچو، یہاں کے چھوٹے موٹے کاروبار کو برباد کرو، وہ لوگ جو چھوٹے درجے پر محنت اور مشقت کر کے اپنا اور ملک کا بھلا کرنے کے خیرخواہ ہوتے ہیں، وہ ان بڑی مچھلیوں میں کہیں دب کر رہ جاتے ہیں۔ کیا مہا نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر کا کاروبار بھی اسی وجہ سے برباد ہوا تھا؟ مسئلہ ہم میں، اس ملک میں نہیں۔ ہم حکومت کو اور عہدیداروں کو بلیم کرنے کے عادی ہیں، لیکن اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن میں کہتی ہوں کہ تم لوگ پاکستان کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ کیا کیا ہے آج تک ہم نے خالص اپنے ملک کے لیے؟ کئی پڑھے لکھے لوگوں کو سرعام سڑک پر کچرا پھینکتے دیکھا ہے میں نے۔ غریب سے غریب اور امیر سے امیر کو دو نمبریاں کرتے دیکھا ہے۔ مڈل کلاس نے بھی اپنی بھرپور تعاون شامل کیا ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اپنے ہی ملک کو لوٹ کر تم لوگ جنت میں جاؤ گے؟ مہا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ آئی ایم سوری مہا، لیکن کوئی پاکستان کے خلاف بولے تو برداشت نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر مقابل خود بھی پاکستان سے ہو۔ تم یہ کہہ سکتی ہو نور، پاکستان نے تمہیں نام دیا ہے۔ پاکستان نے تمہیں بھی نام دیا ہے مہا، وہ اپنے ہر رہائشی کو اون کرتا ہے۔ تم بھی اسے عزت دو، وہ تمہیں عزت دیتا ہے۔ لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس کا بھی تو قصور ہے نا سارا۔ قرضے مانگ مانگ کر سارا اپنی جیب میں ڈالتے ہیں۔ ہم پر کہاں لگایا ہے؟ 4 سڑکیں بنا کر روزگار چھین لیتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان کیسے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ پھر وہی بات، ہم کب تک حکومت کا رونا روتے رہیں گے؟ ہمیں خود بھی تو کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ دوسری پارٹی کا لیڈر جیت جاتا تو پھر اب حالات مختلف ہوتے۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ کسی انسان پر اتنی امیدیں لگانا ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے خود میدان میں اترو، لوگوں پر اتنی آس نہیں لگاتے۔ تو کیا تمہارا کوئی پسندیدہ لیڈر نہیں ہے؟ اسے تجسس ہوا تھا۔ میں لوگوں کو نہیں، ان کے کام کو پسند کرتی ہوں۔ جو کچھ اچھا کرے گا وہ میرے لیے قابل احترام ہوگا، جو برا کرے گا میں اس کے خلاف کھڑی ہو جاؤں گی۔ لیکن ایک ہی شخص میں ساری اچھائیاں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی انسان اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ ہے، اسے اپنے لیڈر پر خاصا یقین تھا۔ یہ تمہاری رائے ہے، میری اپنی رائے۔ میں تمہیں اپنی رائے پر عمل کرنے کے لیے نہیں اکساؤں گی۔ مہا کے فون پر بیل ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، کچھ فاصلے پر ہو کر اس نے فون سنا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیسے میرا سامان اٹھا سکتے ہیں؟ میں ابھی آ رہی ہوں۔ نور نے دیکھا اس کے چہرے کی ساری رونق ختم ہو گئی۔ نور پریشانی میں اس کے قریب آئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ مہا نے فون کو جیب میں ڈالا۔ اپنے اور پرائے ملک کا فرق سمجھ آ گیا۔ زخرف نے اتنے تیز قدموں سے چلتے ہوئے سڑک پار کرتے دیکھا۔ زخرف نے اسے تیز قدموں سے چلتے سڑک پار کرتے دیکھا تھا۔ اس نے سر داؤ بھری۔ اس ملک کے نوجوانوں کو بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ لاؤنج میں آئی اور اردل کے سامنے والے صوفے پر نشست سنبھالی تھی۔ کہو، تمہیں ہمارے ساتھ کتنا وقت گزر چکا ہے؟ کیا کبھی تمہیں ہم سے کوئی خطرہ محسوس ہوا؟ کس طرح کا خطرہ؟ ابروج گائے تھے تمہاری ذات کے لیے۔ اس کا معنی اور مفہوم سمجھ گئی تھی۔ نہیں، یہ حقیقت تھی۔ منشا کو ان کے درمیان کبھی اپنی عزت کا خطرہ محسوس نہ ہوا تھا، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ وہ ان کے درمیان خود کو محفوظ تصور کرتی۔ لیکن جانتی ہو، اب مجھے یہ لگنے لگا ہے کہ تم ہمارے لیے خطرہ بن رہی ہو۔ ایک پل کو منشا کا سانس اٹک گیا۔ وہ اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ برہان کا دایاں ہاتھ تھا۔ وہ کون ہے جس کے لیے تم ہمیں دھوکہ دے رہی ہو منشا؟ اس کی تائرانہ نگاہ منشا کے ہر تاثر کو بھانپنے سرگرداں تھی۔ منشا جانتی تھی، میں صرف ایک اچھی جاب کرنا چاہتی ہوں، اس ملک میں محفوظ رہ کر جینا چاہتی ہوں، اپنی ماں کی اچھی بیٹی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر اردل کو ایموشنل کر رہی تھی کہ سب اس نے زندگی کے تجربے سے سیکھا تھا۔ لیکن پھر اسی جاب کی وجہ سے میں اغوا ہو گئی، میری ماں اس سب میں ماری گئی، میری عزت نیلام ہو گئی، اور دیکھو اب میں کیا بن گئی۔ اردل کے اندر کچھ جھنجھٹ اٹھا تھا۔
सॉरी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। वो ना चाहते हुए भी उसकी बातों में आ गया था। वो औरत थी और उसे मर्द की निगाह का मफहूम मालूम था। वगरना हर मर्द वगरना हर मर्द इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होता। सिर्फ वही मर्द होता है जो औरत की चाहत में मुब्तला हो। नहीं अर्दल यूसुफजई, तुम्हें हक है, मेरे साथ जो चाहे करो। मेरी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा तुम्हारा कर्ज है। अर्दल यूसुफजई शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गया था। बुरहान जो कुछ लेने की गर्ज से वापस आया था, उन्हें यूं खामोश बैठा देखा तो अचंभा हुआ। उसने अर्दल के सामने जुटकी बजाई थी। कौन सी दुनिया में हो तुम दोनों? और वो बाकी के 4 लोग कहाँ हैं? उसने जानबूझकर बाकी लोगों का पूछा, वरना ये कैसे मुमकिन था कि बुरहान को अपने मातहतों की ज़िंदगी का इल्म ना होता। एक की माँ ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया तो वो यूनिवर्सिटी जाना शुरू हो गया। एक के बहनोई ने उसकी बहन को तलाक दे दी और मार पीट कर घर भेज दिया, तो वो अब उसकी चमड़ी उधेड़ने के लिए निकला हुआ है। तीसरा, अच्छा बस करो, मुझे नहीं सुननी उनकी ज़िंदगी की तफसीलात। उसने हाथ उठाकर अर्दल को मना किया, फिर मंशा की जाने मुतवज्जा हुआ, जिसके चेहरे पर इंतहाई कर्बनाक से तासुरात थे। तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। मंशा ने सर हिला दिया। वो अर्दल की तरफ मुड़ा था। तुम्हें मैंने जो कहा था वो करो, औरतों की तरह घर मत बैठ जाया करो। खैर से अब तुम औरतें भी घरों में नहीं रहती। फिर तो तुम्हें मज़ीद शर्म आनी चाहिए। अर्दल ने दांत पीसे थे। अपनी खुफिया गुफ्तगू के बायस मुझे तख्ता मश्क बनाने से गुरेज करो। जाओ जाओ, बुरहान ने उसे बेदखल किया था। वो उठकर बाहर निकल गया। बुरहान अब अर्दल की जगह बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रहम ना था। वो इस औरत से कोई उनसियत नहीं रखता था। कंजा से बार बार मुलाकात की क्या वजह है? सख्त लहजे में जो ठंडक थी, मंशा की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। वो तो सिर्फ आपके लिए। ओ आई सी, अब तुम मुझसे मक्कड़बाजी भी करोगी। उसने सोफे की टेक छोड़ दी थी। मैं वाकई सच बोल रही। वो बजित हुई। नहीं। उसने सफाई देने की कोशिश की। मेरी एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर तुमने कंजा को अपने साथ मुलविस किया या उसे मेरे कारोबार के बारे में मुतल्ला किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। मंशा मरती क्या ना करती कि मस्ताक वहाँ से उठ गई थी। बुरहान ने कड़ी नज़र उसके वजूद पर डाली। उसे अर्दल की वजह से उसे बर्दाश्त कर रहा था, वरना ये औरत उसे शुरू से खटक रही थी। नादिर की वालदा की तबीयत नासाज थी, जिसके बायस मेडों ने एहसान करते उन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दिया था। उन्हें इत्तला मिली तो भागी भागी चली आई थी। ये भी हकीकत थी कि ये खबर भी भाई की बेटी ने दी थी, वरना भाइयों को तो तौफीक भी ना हुई थी। अस्पताल में दाखिल हुई तो कई यादों के बाद गश इस तरह से उमड़ आई कि उन्हें माजी वाज़े दिखने लगा। वो भी शिफ्ट से फारिग होकर अपने कमरे में आई थी। खाना ठंडा पड़ा था। कोलीग्स में से एक भी इसी वक्त कोलीग में से भी एक उसी वक्त आई तो दोनों ने मिलकर वही ठंडा खाना खाना शुरू कर दिया। अभी दो निवाले हलक से उतरे थे कि इमरजेंसी की इत्तला मौसूल अभी दो निवाले ही हलक से उतरे थे कि इमरजेंसी की इत्तला मौसूल हुई थी। बकिया खाना वहीं छोड़कर वो भाग भाग कर नीचे बकिया खाना वहीं छोड़कर वो भाग कर निकली थी। एक मरीज को निहायत तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। वो करीब बड़ी और स्ट्रेचर पड़े वजूद को देखकर उनका दिल मतलाने लगा। वो दोने वाले जो खाए थे वो बाहर आने को हो गए। उन्होंने सीने पर हाथ रखकर अफवाही रोकी थी। फिर तेजी से मरीज के करीब हुई और चेहरा देखते ही उनकी आंखें फट गईं। वो वजूद लुकमान आलम का था। जिल मानो जिस्म से अलग होने को थी और सारे वजूद में जैसे पानी भर गया था। उन्हें लगा वो बेहोश हो जाएंगी। इर्द गिर्द खड़े डॉक्टर की आवाज़ें आ रही थीं। खुदकुशी है शायद। अल्लाह किसी को ऐसी मौत ना दे। मुझे लगता है ये मर गया है। उनका सर चकराने लगा। उन्होंने स्ट्रेचर थामा और फिर अपने अंदर की सारी हिम्मत यकजा की थी। इमरजेंसी में लेकर चलो जल्दी। वो चिल्लाई थी। मुझे लगता है ये मर चुका है। साथ ही डॉक्टर ने अपनी राय का इजहार किया। मैंने कहा लेकर चलो। वो अपनी पूरी जान से चीखी थी। कोलीग ने अचंभे से उन्हें देखा। मामला गंभीर था। वो स्ट्रेचर के पीछे ही अंदर पड़ी थी। ग्लूकोज पहनने भी ग्लव्स पहनने भी याद न रहे थे। उन्होंने लुकमान आलम के वजूद को छूकर देखा। उन्हें लगा कि उनकी जिल्द उनके हाथों पर लग गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। साथ ही डॉक्टर ने उन्हें थामा और मौत की खबर सुना दी थी। ही इज डेड। वो नफी में सर हिलाने लगी। क्या वे इसे जानती हैं डॉक्टर नादिर? ही इज़ माई प्रोफेसर। उनकी आंखों के गिर्द इतनी धुंधलाहट हो चुकी थी कि सब तारीफ होने लगा। कोई शागिर्द अपने उस्ताद को यूं मरा हुआ नहीं देख सकता। फिर उस्ताद भी वो जो आइडियल रहा हो, वो वहीं ठह गई थी। जिनसे तिब की तालीम ली थी उन पर ही वो काम ना आ सकी थी। उस दिन नादिश ने डॉक्टरी छोड़ दी थी। मंजर बदला, आंखें बदल गईं। अस्पताल ने उन्हें सिर्फ दुख ही दिए थे। वो माँ के कमरे के बाहर खड़ी थी जब आयशा उनके पास आई। वो ठीक हो जाएंगी नादिश। आयशा आजकल उसी अस्पताल में अपॉइंट थी। मेरे साथ चलो, अभी डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। मगर मैंने सुना कि यहाँ सहूलियात नहीं है। वो कैसे इलाज करेंगे? नादिश का चेहरा दर्द पड़ चुका था। आयशा ने उनका हाथ पकड़ा और अपने साथ कमरे में ले आई थी। उन्हें कुर्सी पर बिठाया और पानी का गिलास दिया था। क्या सरकारी अस्पतालों और यूनिवर्सिटियों में वाकई बजट की कमी होती है? वो अफसोस से पूछ रही थी। अगर भाई वक्त पर बता देते तो इन्हें प्राइवेट अस्पताल ले जाती और हर तरीके से इनका इलाज करवाने की कोशिश करती। मैं नहीं मान सकती। आयशा ने इनकार किया। आखिर को इनके पास तजुर्बा था। कई गिद्ध देख रखे थे। क्यों?
हमारे यूनिवर्सिटीज़ और अस्पतालों के आला हकाम से लेकर चपरासी तक सब करप्शन में मुलविस होते हैं। हत्ता कि चंद असातिज़ा और डॉक्टर्स भी गवर्नमेंट जितना भी बजट देती है ये अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, अपने अपने हिस्से निकालते हैं, अपना फ़ायदा सोचते हैं। फिर चाहे वो बच्चे जो बमुश्किल फीसें देकर पढ़ने के लिए आए होते हैं, वो कितनी ही मुश्किलात से क्यों ना गुजरें, वो मरीज़ जिनके पास इलाज के पैसे ना हों, वो कैसे अपना पेट काटें, इन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि जेंज़ी एतराज़ात करने की आदी है, मगर ये नहीं समझते कि वाक़ई उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, उनकी बात को संजीदा नहीं लिया जाता। अगर वो अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए खड़े हो जाएँ तो उन्हें बदतमीज़ी के ताने दिए जाते हैं। कितने ही तलबा ट्यूशन पढ़ा कर अपनी फ़ीसें निकालते हैं, लेकिन जब इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कोई मकाम नहीं मिलता, तो बागी हो जाते हैं या दिल बर्दाश्त। नादिश का दिमाग अब काम करने लगा था। ये सब उन्होंने भी सोचा था। ज़्यादा ना सही कुछ तजुर्बा तो उन्हें भी था। आयशा मजीद बोल रही थी। तुमने सुना नहीं? अब लोग तो डायलॉग से मशहूर होने वाले लोगों को अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बतौर मेहमान खसूसी बुलाने लगे। अभी कल ही की तो बात है कि उनकी नज़रों से एक पोस्ट गुजरी थी। नादिश को अफसोस हुआ। अब तुम खुद अंदाज़ा लगा लो, इतना पढ़ लिख कर वो तलबा जहाँ चंद हज़ार बमुश्किल कमाते हैं, वहाँ ऐसे नाम नेहाद इन्फ्लुएंसर्स को इतना ख़ास मकाम देकर बुलाने का क्या मकसद है? ये तो इन हकाम के दिल का खोट है, जो अपने तलबा को खुद डिग्रेड करते हैं और इन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि इन्हें भी अगर ख़ास मकाम चाहिए तो यही बेतुके और बेहयाई वाले काम करके वायरल हो जाओ। सच बताऊँ तो मुझे अपनी बेटी भी इसी कड़ी का एक हिस्सा लगती है। मुझे अपने अल्फाज ही खोखले महसूस होते हैं। आयशा खामोश हुई तो नादिश ने उनका चेहरा देखा। वो आजकल बुझी बुझी रहने लगी थी, बिल्कुल उनकी तरह। नूर ने ये सब मेहनत से कमाया है आयशा, मैं ऐसी मेहनत की कायल नहीं। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? पहले कदम पर रोकना चाहिए था। मैंने उसे परवाज़ करने देना चाहा, ताकि उसे जल्द अंदाज़ा हो जाए कि ये दुनिया ऐसे लोगों के पर काट देती है। मगर मैं गलत साबित हुई। ये दुनिया बर्बादी की तरफ गामज़न है। यहाँ इन लोगों की कोई गुंजाइश नहीं जो तालीम के ज़रिए आगे आना चाहें। परेशान ना हो, वो जल्द या बदेर अपने असल की जानिब लौट जाएगी। उन्हें अपना दुख भूल गया था। दोस्त ऐसा ही होता है। जब दोस्त दुखी हो तो अपना दुख भूल जाओ और उसका गम सुनकर हल्का कर लो, तब तक देर ना हो जाए। मैं नहीं चाहती कि वो किसी ऐसे रास्ते की तरफ निकले जहाँ से वापसी पर भी अंधेरा ही उसका मुकद्दर बने। वो एक माँ थी, बेबस माँ। मनफी मत सोचो, उसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं चाहकर भी मस्बत सोचूं तक रसाई हासिल नहीं कर पा रही। दोनों को ही चुप लग गई थी, दोनों का ही दुख बड़ा था। सूफिया की शादी होने वाली थी और हमेशा की तरह पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड लड़की ने अपनी शादी का सारा थीम भी पाकिस्तानी तर्ज पर ही रखा था। वो सुर्ख जरतार का जोड़ा पहनने वाली थी और कंज़ा को भी अपने साथ घुमाए हुए थी। ये वाला ड्रेस देखो ज़रा। कंज़ा ने एक नहायत नफीस और हसीन सुर्ख लहंगा देखा था। उसे देखकर सूफिया की निगाहों में सताइश उभरी। तुम पहन कर दिखाओ। कंज़ा बिदक कर पीछे हूँ। शादी तुम्हारी है तो मैं किस खुशी में पहनूं? उसने झुर्री दी थी। प्लीज़, मैं खुद पर इतने अच्छे से समझ नहीं पाऊंगी। तो तुम तो चेहरे से भी पाकिस्तानी दिखती हो ना, तुम्हें पहनाकर मुझे हौसला मिलेगा और समझने में भी आसानी होगी। वो बज़िद हुई थी। मैं नहीं पहन रही। सर नफ़ी में हिलाया था। प्लीज़ कंज़ा। वो मिन्नत पर उतर आई थी। मुझे ज़रूरी काम से अभी ऑफिस जाना है सूफिया। शाम के वक्त जाने वो क्यों ऑफिस जाने का कह रही थी। तो मैंने कब कहा कि तुम लहंगे में ऑफिस जाओ? प्लीज़ 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 किंजा, अब ऐसे करोगी? ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ओके फाइन, किंजा ने दिल कड़ा करके हामी भरी। अब जल्दी से चेंज करके आओ। उसने उसे चेंजिंग रूम की तरफ भेजा था। जा तो रही हूँ, किंजा ने उसे घूरी से नवाजा था। सोफिया ने दांत निकोसे। कुछ मिनटों बाद वो बाहर निकली तो अजीब सी कैफियत का शिकार थी। उसने खुद को आईने में देखा तो खुद ही मबहूत रह गई थी। इस रंग में और ऐसे जोड़े में वो अतीत की दुल्हन बनना चाहती थी। उसके हाथों से अंगूठी पहनना चाहती थी। निकाह नामे पर अपने और उसके दस्तखत की ख्वाहिशमंद थी। सोफिया ने उसे देखा तो आंख झपकना भूल गई थी। सुर्ख रंग के भारी कामदार लहंगे को नाजुक हाथों से संभाले उसका वजूद दो आतिशा दिख रहा था। सोफिया की नज़रों से खजल होते उसने चेहरा झुका लिया था। बाखुदा इतना मासूम तासुर था कि सोफिया खुद को उसकी मदाह सराई से रोक ना पाई थी। मेस्मराइजिंग। वो जो गुजरते हुए इस लड़की की ऊंची मिन्नत बल्कि कंजा लफ्ज़ सुनकर ठहरा था। उसे लहंगा थामे अंदर जाता देखकर उसके अंदर एक अजीब तजस्सुस दराया था। वो उसे इस जोड़े में देखना चाहता था और जब देखा तो कुछ और ही देख ही नहीं पाया था। घूम कर दिखाना गिंजा। मैं नहीं घूम रही। पहले ही इतना भारी जोड़ा पहनकर खड़े होने में भी दिक्कत पेश आ रही। उसने बमुश्किल कदम उठाए थे। उफ, कितना भारी था ये जोड़ा। वो अपनी शादी पर इतना कामदार जोड़ा नहीं पहनेगी। बस हो गया फैसला। अच्छा, मैं खुद घूम कर देख लेती। वो उसके गिर्द यूं घूम रही थी कि गोया परवाना शमा के गिर्द घूमता है। बुरहान की निगाहें भी उसके इर्द गिर्द तवाफ कर रही थी। वो उसी की जानिब देखते शॉप में दाखिल हुआ और सीधा काउंटर पर गया था। मैनेजर किधर है?
जी सर। मैनेजर उसके पीछे ही खड़ा था। ये जोड़ा पैक कर दें, उसने किंजा के उकताए चेहरे की जानिब देखकर कहा। मगर सर वो ट्राई कर रही हैं। तो उसने अप्रोच काए थे। ये हमारी पॉलिसी है, 3 गुना कीमत दूंगा। कैश या कार्ड? बुरहान एक जानिब को मुस्कुराया था। वो जानता था पैसा सब खरीद सकता है। कैश। उसने मुंह मांगी कीमत उसके सामने रखी थी। 10 मिनट के अंदर ये ड्रेस पैक होना चाहिए। मैं आता हूँ, माइंडेड। श्योर सर। वो बाहर को निकल गया था। एक आखिरी नज़र किंजा पर डाली। उसका दिल तो पहले ही इस औरत पर फिदा था। यूं देखकर तो खुद पर काबू पाना बेकाबू हो गया था। वो मजीद यहाँ रुकता तो उसके करीब चला जाता। फिलहाल उसे दूरी ही बेहतर थी। मैनेजर किंजा के पास आया। मैम ये ड्रेस आपको उतारना होगा। तो ये तो मैं उतारने ही वाली हूँ। बस हो गया ना सोफिया? सोफिया ने सर मलबत अंदाज में हिला दिया। ये लहंगा ओके है, इसे पैक कर दें। सॉरी मैम, मगर ये बिक चुका है। वो शर्मिंदा से लहजे में बोला तो किंजा ने उलझन से उसे देखा। क्या मतलब है इस बात का? सोफिया से पहले उसने सवाल किया। मैम ये खरीदा जा चुका है। कब? आपके आने से पहले। फिर आपने इसे यहाँ क्यों लगाया हुआ है? और हमने आपके सामने ट्राई करने के लिए भी उठाया था। आप उस वक्त ही बता देते। अब अचानक आप ये कह रहे हैं कि लहंगा बिक गया। किंजा को शदीद गुस्सा आया था। आप दूसरा डिज़ाइन देख लें, इससे बेहतरीन डिज़ाइन मौजूद है। मैनेजर वाकई एहसास नदामत में था। आपको वाकई लगता है कि अब हम आपकी शॉप से लेंगे? गुस्से से कहते किंजा फौरी चेंजिंग रूम में चली गई थी। लहंगा उतार कर उनके हवाले किया और फिर सुफिया को लिए बाहर निकल आई। बुरहान वापस आए तो मैनेजर ने वो लहंगा उसके हवाले किया। शॉपिंग बैग लिए वो गाड़ी में आ गया था। घर आकर उसने अलमारी खोली। वो उसे महफूज करना चाहता था। लहंगा रखते उसने सर झुकाकर उसे सूंघा था। उसे किंजा की खुशबू आई थी। वो मशहूर रह गया था। कई घंटे ख्वारी के बाद बिलाखिर सूफिया को उसकी पसंद का जोड़ा मिल गया था। अफ्तारी का वक्त हो चुका था सो वहीं मॉल के रेस्टोरेंट में चली आई थी। वो उसे अपने होने वाले शौहर के मुतल्लिक बताने लगी जिससे कंधा दिलजमी से सुनती गई। अचानक सूफिया ने उसकी पसंद पूछ ली थी। तुम्हें किस तरह के लोग पसंद हैं? एस्प्रेसो। कॉफ़ी का घूंट भरते उसने बेसाख्ता जवाब दिया था। जवाब वाज़ेह हो तो इसके लिए सोचना कैसा? मतलब? उसने चीज़ बर्गर का बड़ा सा निवाला मुंह में डालते पूछा था। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जिन्हें अपनी फ़िक्र, मोहब्बत, नर्म जज़्बात और एहसासात बयान करने आते हैं, जो मुक़ाबिल को न सिर्फ़ अपने रवैये बल्कि अपने अल्फ़ाज़ से भी सरशार करने की सलाहियत रखते हैं। अपने अल्फ़ाज़ की मुजस्सम तस्वीर का सोचते बुरहान याद आया था। उसने झुर्री ली थी। मगर कुछ लोग जज़्बात खुद तक रखने के कायल होते हैं। ये अलग भी। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता। ऐसे आप अपने चाहने वालों को बहुत सब्र से गुज़ारते हैं और कभी-कभार इज़हार ना करना ही रिश्तों में दरार डाल देता है। किस गर्व से हदीद का लिया-दिया अंदाज़ भरा था। उसने खुद को हौसला देने के लिए लंबा साँस भरा। जाने वो अल्फाज़ से इतना एतराज़ क्यों बरतता था? या शायद सिर्फ़ उसी के मामले में ऐसा था? नहीं, वो किसी की भी तारीफ़ करने का कायल नहीं था। किंजा जानती थी वो अपने जज़्बात छुपा कर रखता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने मसाइब और दुःख पोशीदा रखता है। तुमने अफ़ान को कंसिडर नहीं किया? कंज़ा ने नफ़ी में सर हिला दिया था। इसी लम्हे उसे अफ़ान की खैरियत की चाह हुई थी। इस हादसे के बाद दोनों की मुलाकात ना हो पाई थी। मंशा ने उसे मुराद चचा की कॉल के मुतालिक आगाह कर दिया था। जो चीज़ राज़ रह गई थी वो उसे राज़ ही रखना चाहती थी। अलबत्ता वो फ़ाइल अभी तक उसके अंदर खलबली मचाए हुए थी। अफ्तारी के बाद चहलकदमी की नीयत से मार्केट तक का सफ़र करती ज़ुफ़र नूर अचानक रुकी थी। सामने आइसक्रीम का स्टॉल था। आइसक्रीम पसंद ना करने वाली कैसे कैसे जानती थी कि उसे अचानक आइसक्रीम खाने का दिल करने लगा था। लेकिन वो ये भी तो जानती थी कि आइसक्रीम के लिए उसके पास कैश नहीं होगा। अब वो स्टॉल वाले को ऑनलाइन कैसे पेमेंट अब वो स्टॉल वाले को ऑनलाइन पेमेंट कैसे देगी? इतनी तरक्की हो गई है, पूछने में क्या हर्ज है? उसने पूछना चाहा मगर ज़ुबान की रुकावट पेश आ गई थी। थक हार कर मायूस होते उसने कुछ हसरत से स्टॉल को देखा और मुड़ने ही लगी जब अगले ही लम्हे उसका हाथ किसी की गिरफ्त में आया था और उस पर कुछ धरा गया था। नूर ने गुमगुम की कैफियत में शय को देखा। वो नोटों से भरा एक जेंट्स पर्स था। उसने हैरत ज़दा नज़र उठाकर उस शख्स को देखा था। वो हदीद था। उसके खुद को देखने पर सर को खम दिया था। ज़फ़र ने नासमझी से उसे देखा। तुम्हारी चीज़ है, जो करना है करो। मुझे नहीं चाहिए। उसे अभी तक नहीं भूला था कि हदीद ने उसे ज़ैद के मुतल्लिक़ कुछ नहीं बताया था। आइसक्रीम तो चाहिए है ना? ज़फ़र ने नफ़ी में सर हिला दिया। रमज़ान में झूठ बोल रही हो? उसने बात ही ऐसी की कि ज़फ़र को शर्मिंदगी ने आन घेरा था। मैं रूम से पैसे लाकर खा लूँगी। रूम से पैसे लाकर मुझे दे देना। अभी ले लो। ये स्टॉल ठीक 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा। ऐसे कैसे बंद हो जाएगा? वो खफगी से बोली थी। मुझ पर यकीन नहीं तो पूछ लो। वो खासा पुरयकीन था। मगर ज़ुहर ने उसे मशकूक निगाहों से देखा। फिर स्टॉल वाले की जानिब मुतवज्जह हुई। क्या ये स्टॉल 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा? उसने अंग्रेज़ी में सवाल किया मगर मुकाबिल को समझ में ना आया था। क्या हर किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती? वो इशारे की ज़ुबान से पूछने लगी। तो हदीद को हंसी ज़ब्त करना मुश्किल हो गया। सिर्फ भरम दिखाना था। इतनी आसान शय को पुरमशक्कत बना देती है उसकी बीवी। मैं पूछ दूँ? कितना बड़ा दिल था उसका। ज़फ़र ने आंखें छोटी की उसे देखा। रहने दो, मुझे नहीं खानी कोई आइसक्रीम। वो पैर पटक कर मुड़ गई।
उसे बिला वजह ही खुद उसे बिला वजह खुद पर गुस्सा आने लगा। कुछ देर बाद उसकी हमकदम हुआ और दाएं हाथ में पकड़ी चॉकलेट आइसक्रीम उसके सामने की थी। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैंने तो बस अपने लिए एक आइसक्रीम ही कहा था। उसने ज़बरदस्ती 2 दे दी। अब अगर 2 खाऊंगा तो सुबह तक गला खराब हो जाएगा, रोज़ा रखने में दिक्कत होगी। एक तुम खा लो तो मेरी मदद हो जाएगी। उसकी इतनी लंबी गुजारिश पर ज़ुखरफ का गुस्सा ठंडा पड़ा था। उसने एहसान करने वाले अंदाज में आइसक्रीम पकड़ ली थी। मुसलमानियत के नाते कर रही हूँ मैं मदद, वरना मुझे कोई शौक नहीं इतनी रात में ये मीठी आइसक्रीम खाने का। एहसान जताता हुआ अंदाज। अदीत ने समझकर सर हिला दिया था, अलबत्ता मुस्कुराहट रोकने की कोशिश शदीद तर हो रही थी। हाँ जानता हूँ, उसने आइसक्रीम खाते हुए जवाब दिया। उसे यकीन था कि अब वो आइसक्रीम मुंह में डालता तो हंसी निकल जानी थी। उसे यकीन था कि अगर वो आइसक्रीम मुंह में न डालता तो हंसी निकल जानी थी। चॉकलेट फ्लेवर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो मज़े से खाते हुए उसने मजीद भरम दिखाया था। हाँ जानता हूँ, और ज़्यादा आइसक्रीम तो वैसे भी नहीं खाई जाती। हाँ हाँ जानता हूँ। तुमने कौन सा फ्लेवर लिया है? वो उसके आइसक्रीम के पास झुकी थी। शूज़ पहनने के बाद उसे अपने पैर उठाने पड़े थे, वगरना हाई हील्स में वो काफ़ी हद तक उसके बराबर आ जाती थी। कॉफ़ी? चॉकलेट ट्राई करोगे? कॉफ़ी ट्राई करोगी? ज़ोर डाल रहे हो तो चख लेती। अदीत ने अपनी कोन उसके सामने की तो उसने एक बड़ी बाइट ली थी। एनोसी बलकंजा ने इस मंजर को देखा था। बहुत मुनफरिद जायका है इसका, ले लो। अदीत ने खुले दिल से ऑफर की थी। वैसे भी इसे आइसक्रीम एक आंख ना भाती थी। रद्दो बदल कर लेते हैं। अदीत ने अपनी कोन उसे थमाई और उसकी थाम ली थी। अगर ना लेता तो उसकी अना जाग जानी थी। बेचारा मजबूर था। वो दोनों एक दूसरे की छोड़ी हुई आइसक्रीम खाते दोबारा चलने लगे थे। गंजा के हाथों में मौजूद शॉपिंग बैग जमीन बोस हुए थे। क्या हुआ गंजा? सुफिया ने हैरत से उसे देखा। कुछ नहीं। वो हड़बड़ाकर सड़क पर से बैग्स उठाने लगी। उसका दिल बेरब्त अंदाज में धड़कने लगा था। किसी अनहोनी का खदशा सर उठा रहा था। कानों पर एयरपोर्ट लगाए वो वर्जिश में मशगूल थी। जब से रमज़ान शुरू हुआ था उसने अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था। वो ख़राब फिजिकल हेल्थ के साथ ज़्यादा दिन शोबिस में नहीं ठहर सकती थी। अभी उसे एक ड्रामा के डायरेक्टर का फ़ोन आया था। उसे यकीन था कि वो ड्रामा बिल्कुल ही घिसा पिटा नहीं होगा, क्योंकि जब उसने लिखारी का पूछा तो उन्होंने उसकी पसंदीदा लिखारी का नाम दिया था। उसे अब वापस अपनी रूटीन में आना था। वर्कआउट से फारिग होकर उसने एयरपोर्ट्स उठाए तो लम्हे की ताखीर के साथ ही फ़ोन पर होती घंटी की आवाज़ सुनाई दी थी। फरहत की कॉल थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। कहाँ हैं आप बॉस? बिना सलाम दुआ और खैरियत मतलूब के सवाल से सामना होने पर वो हैरान हुई। बर्लिन? अरे वो तो मालूम है। किस होटल में हैं आप? पता बताएं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बर्लिन बैठी हो। उसने मजाक में कहा था। फरहत ने फ़ोन काट दिया। उसे लगा वो गुस्सा हो गई है, लेकिन उसी पल उसकी वीडियो कॉल आने लगी। ज़ुखरफ ने नफ़ी में सर हिलाते कॉल उठा ली। वेलकम मी बॉस। उसने एयरपोर्ट की जानिब कैमरा घुमाया तो ज़ुखरफ का मुंह हैरत से खुला रह गया। तुम बर्लिन क्या लेने आई हो? देखें आप मेरे बगैर कहीं भी नहीं जाती। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। अब जल्दी से अपना पता भेजें, मुझे रेस्ट करना है। ज़ुखरफ बेसाख्ता मुस्कुराई थी। फरहत उसके असिस्टेंट से कहीं ज़्यादा थी। कुछ मिनटों बाद वो उसके दरवाजे पर खड़ी थी। ज़ुखरफ उसे देखकर मुस्कुराई और फरहत ने मौका पाते उसे गले लगा लिया था। आई मिस यू बॉस। मस्काबाजी। मुझे कौन सा नोबेल प्राइज़ मिलना है आपसे झूठ बोलकर? वो अलग हुई थी। क्या मालूम मिलना हो, उसने आंख दबाकर कहा। भरत ने शानें झुका दी। अच्छा तो मैं आपकी मेहमान हूँ, खातिरदारी करें ज़रा। धड़ाम से बेड पर बैठते उसने खासी बेतकल्लफ़ी से कहा था। ज़बरदस्ती के मेहमान की मेज़बानी नहीं करती मैं। भरत ने मुंह बनाया था। मजाक कर रही हूँ, फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। वो फ्रेश होकर वापस आई तो वो केटल के पास खड़ी दिखाई दी। कोई देख ले तो कि बॉस अपने असिस्टेंट के लिए चाय बना रही है, बेहोश ही हो जाए। मैं साथ पास्ता भी दे रही हूँ। अब तो सामने वाले को मर ही जाना चाहिए। तो खब ने उसके आगे ट्रे रखी तो टांगे पिसाड़ कर बैठते वो रग़बत से खाने लगी। आप मुझे लिए बगैर ही जर्मनी आ गई थी, ये तो अच्छी बात नहीं। मज़ेदार पास्ता मुंह में गया। उफ, करार ही आ गया था। वो दरअसल इस काम की नोयत ज़रा मुख्तलिफ थी। उसने बालों के लटकान के पीछे अड़सी। लाख मुख्तलिफ हो, मगर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाय का घूंट भरते उसने शिकवा किया तो अपने नादीबी निगाहों से उसे देखा था। तुम सीधी तरह बताओ, क्यों आई हो? मेरी जासूसी करने तो नहीं आई हो? ज़ुखरफ का शक उसके अल्फाज और अंदाज से बखूबी झलक रहा था। वो दरअसल मुझे एक दोस्त से मिलना था। दोस्त को इल्म है कि तुम उसकी खातिर पाकिस्तान से यहाँ आ गई हो? ज़ुखरफ ने सीने पर हाथ बांधकर उसे देखा। हाँ वो सब जानता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार होकर गायब हुई। और मुझे कब मिलवा रही हो अपने दोस्त से? अभी तो बिल्कुल नहीं। उसने पास्ता से इंसाफ करते उसे साफ इनकार किया था। क्यों? उसकी बीवी बहुत शक्की है। आपको उसके साथ देख लिया तो इस बेचारे की शामत आ जाएगी, उसने शरारत से कहा था। ज़ुखरफ की घुरी अब ज़रा बढ़ गई थी। तुम्हें उसके साथ देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी? क्या मतलब? छोड़े मतलब, ये बताएं कि कब तक मेरी मेहमान नवाजी करेंगी?
9 9 बज रहे हैं अभी, 10:10 तक तुम मेरी मेहमान हो, इसके बाद तुम जानो और तुम्हारा दोस्त। हद हो गई है। सहरी भी नहीं करवाएंगी? वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि उसे अंदेशा होता था कि किसी दिन वो सहरी के वक्त सोती होगी, जब वो इसके बालों में हाथ फेरकर उसे जगाएगी। वो फरहत को हदीद के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी। यहाँ सिर्फ एक कमरा है, तो मैं सोफे पर सो जाऊंगी। तुम थकी हुई हो, मैं नहीं चाहती कि तुम बेराम। रहने दें, बेदखल कर रही हैं। उसने मुंह बनाया। फरहत। जोखफ ने उसे कायल करना चाहा, मगर फरहत के फ़ोन पर कॉल आने लगी। 1 मिनट, कॉल है। जोखफ ने सर हिलाया, उठकर ज़रा फासले पर हो गई। 2 मिनट बाद वापस आई तो चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग रही थी। मेरे दोस्त ने उसी होटल में मेरा कमरा बुक करवा दिया। बाय बाय। उसने तेजी से अपना सूटकेस उठाया और ज़ुखरफ के गाल पर बोसा देते बाहर को भागी। तब ज़ुखरफ ने उसे पुकारा था। सुनो, वो दरवाजे के पास रुक गई थी। तुम अपने दोस्त को पसंद करती हो? उसे कौन नापसंद कर सकता है? इसका तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? वो मुझे अपनी बीवी की वजह से अहमियत देता है। क्या मतलब? फरहत की बातें अजीब तरीन थीं। थकी मैं हूँ, लेकिन आराम की ज़रूरत आपको है। वो कमरे से बाहर निकल गई। ज़ुखरफ का दिमाग सनसना उठा। कितनी अजीब बात करके गई थी वो। उसने झुरझुरी ली थी। मुराद के पैगाम पर वो थाने में आया था। जाने ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके लिए उसे यहाँ बुलाया गया था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो मुराद ने चेहरा उठाकर उसे देखा। हदीद आओ। वो अंदर आ गया। चेहरे पर नाकाबिले फहम तासुरात थे। सब ठीक है? हाँ हाँ, बैठो। उन्होंने सामने वाली कुर्सी की जानिब इशारा किया। एक्सप्रेसो लेकर आओ। वो बैठ गया तो उन्होंने मातहत को हिदायत जारी की। हदीद की जानिब देखा जो गोल गले की शर्ट के ऊपर कोट पहने हुए था। बाल हमेशा की तरह सलीके से जमे हुए थे। बात को घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसी आदत नहीं। बिल्कुल साफ और सीधी बात करूंगा। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। वो खतरनाक हद तक संजीदा थे। हदीद की पेशानी पर शिकने उभरी। क्या मसला हुआ है? उसे अब हकीकतन परेशानी होने लगी थी। कहीं उसके इरादों का इल्म तो नहीं हो गया? कंज़ा को पसंद करते हो? सवाल उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट आया था। वो पहलू बदल कर रह गया। इस सवाल का क्या मतलब है? माथे पर मौजूद लकीरों की तादाद में वाज़ेह इज़ाफ़ा हुआ था। हाँ या ना? कंज़ा को कोई नापसंद नहीं कर सकता। उससे शादी करोगे? उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो उससे ऐसे सवालात करेंगे। नहीं। उसने एक लम्हे की देर किए बगैर ही जवाब दिया था। मुराद ने रुकी हुई सांस बहाल की थी। वजह? मैं किसी को जवाब देने का पाबंद नहीं। इसका लहजा उखड़ा हुआ था। मुराद ने उसकी आंखों में झांका। उन्हें से आंखों में सिर्फ स्याही ही दिखी थी। ठीक है, मत दो जवाब, लेकिन अपना ये नज़रिया भाई के सामने रख दो। उन्होंने पासा पलटा। हदीद ने अब्रोच कहे। क्यों? तुम इतने मासूम नहीं हो हदीद। बाखुदा बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी वजह से वो मेरे बेटे की ख्वाहिश को रद्द करें। क्या वो नहीं जानता कि अफ़ान की क्या ख्वाहिश थी? मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं डैड को हर्ट नहीं कर सकता। फिर कंधा से शादी कर लो और ख़त्म करो अफ़ान की सारी उम्मीदें। मैंने किसी को ना तो उम्मीद थमाई है और ना ही आस लगाई है। ना ही मैं किसी की उम्मीदें तोड़ने के फरीज़े से सर अंजाम देता। मुराद उसे देखकर रह गए थे। जिसे बोलना सिखाया था वो आज उनके मुंह को आ रहा था। जिसे एतमाद दिया था वो उन्हीं को एतमादी के गड़े में फेंक रहा था। ये मुझे तो यकीन नहीं आता तुम इतने बेहिस कब से हो गए। तुम जानते भी हो अफवान तुम जानते भी हो अफवान कि किस हद तक इस सब में मुलविस हो चुका है। ये आपका और आपके बेटे का मामला है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। उसने हाथ खड़े किए। मुराद ने जबड़े भींचे। तुम ही असील तुम ही असल वजह हो हदीद। हर जुर्म की वजह, हर गुनाह का आगाज। वो जज्बात के हाथों मगलूब हो गए। अच्छा, वो कैसे? हदीद मेज पर कोनिया टिकाए आगे को हुआ। मुराद ने लब भींचे। बताइए ऑफिसर मुराद मजदानी, भला हदीद आलम का वजूद कैसे किसी के लिए गुनाह का बायस बना? उनकी जुबान पर मानो कुफल लग गया था। हदीद उनकी बेबसी देखकर उठ खड़ा। जब जवाब देने की हिम्मत ना हो तो उस बात की शुरुआत भी नहीं किया करती। खैर, चलता हूँ। क्या मालूम किसी दिन गुनाहों का अंजाम भी मेरे हाथों ही हो जाए। वो जिस धज से आया था उसी शान से वापस लौट गया। मुराद ने आंखें बंद करके कुर्सी के बोझ से टेक लगा ली। उसे कई साल पुरानी अपनी गुफ्तगू याद आई थी जब उन्होंने इब्राहिम को समझाने की कोशिश की थी। भाई, ये बच्चा तो जिंदगी से बेहद मायूस है। इनकी निगाहें खुले दरवाजे से नजर आते हदीद पर जमी थी। मैं इसे वापस जिंदगी की तरफ ले आऊंगा। वो पुरयकीन थे। अगर जिंदगी मकसूद थी तो बाप के साथ क्यों नहीं? मैं बाप हूँ इसका, उन्होंने जोर देकर कहा। मुराद ने अफसोस से उन्हें देखा। आप खुद को धोखा दे रहे हैं। मंजर तब्दील हुआ। मुझे लगता है वो सब जान जाएगा। आज हदीद के गुस्से ने उन्हें डरा दिया था। वो स्कूल में एक स्टूडेंट का सर फाड़ आया था। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हो गया, वो तब भी मेरा ही रहेगा। साल आगे बढ़े। वो कॉलेज जाने लगा। अफनान अफान बता रहा था कि हदीद ने उसे धमकी दी। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो पूरे एतमाद से लबरेज थे। उन्हें हैरत हुई, मगर वो इब्राहिम की बात मान गए, क्योंकि उन्हें खुद भी अफान से ज़्यादा हदीद पर भरोसा था। उन्होंने आंखें खोली। एक्सप्रेसो सामने पड़ी थी। 2 मग, भाप उड़ाते मग। लेकिन आज उन्हें महसूस हुआ कि आइंदा कभी वो एक्सप्रेसो के 2 मग एक साथ नहीं देख सकेंगे। वो अपने अंदर के जज्बात पर काबू पाना चाहता था, लेकिन उसे उसे अंदर लेकिन उसे अपने अंदर शदीद वहशत महसूस हो रही थी।
वो क्या से क्या बन चुका था। उन लोगों को धोखा दे रहा था जिन्होंने उसे पाला था, सहारा दिया था, अपनी औलाद के बराबर मकाम दिया था। उसने दीवार पर पंच मारे, हाथ जख्मी हो रहे थे मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे क्या बनना था और वो क्या बन चुका था। इससे कबल कि वो मजीद अपने हाथ जख्मी करता, फ़ोन की बीप हुई थी। उसने राब्ता जोड़ा था। आयशा ने उसकी खैरियत मालूम की। उसने झूठ बोला। वैसे भी हदीद को अब झूठ बोलने में तो दिक्कत महसूस ना होती थी। वो कैसी है? उनकी आवाज़ में वही असली ममता झलक रही थी। हदीद ड्रेसिंग के पास आया। वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद था। आपकी बेटी? आपसे बेहतर कौन जानेगा उसे कि वो कैसी होगी। उसने बॉक्स से क्रीम निकाली और बेड पर चला आया था। मैंने नूर के बारे में नहीं पूछा। फिर उसने क्रीम का ढक्कन खोलकर उसे अपने ढकने पर लगाना शुरू कर दिया। कंज़ा कैसी है? हदीद का हाथ थम गया। जाने आज उन्होंने इसके बारे में क्यों पूछा था। हमेशा की तरह मासूम। उसकी मासूमियत से लबरेज आंखें हदीद के सामने उभरी थी। वो हदीद की ज़िंदगी में आने वाली हर औरत से ज़्यादा शगुफ्ता, हसास और मासूम थी। उसे दुख नहीं मिलना चाहिए हदीद। आपको आज वो क्यों याद आ गई? उसने क्रीम लगाने का इरादा मुलतवी किया। वैसे भी अभी वो बात लेने वाला था। बाप के गुनाहों की सज़ा बेटियों को नहीं मिलनी चाहिए हदीद। ना मेरी बेटी को, ना किसी कातिल की बेटी को। वो मुझे बहुत अजीज़ है माँ। सिर्फ उसे दुख से बचाने के लिए ही मैंने इब्राहिम वजदानी का साथ दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कंज़ा का बाप है और कंज़ा मुझे बहुत अजीज़ है। हर गुजरता लम्हा इस बात का गवाह था कि वो सच्चा था। कंज़ा से मुखलिस होने के मामले में हदीद सादिक था। मैं जानती हूँ वो अहम नहीं होती तो कब की अजियत में होती। उसे दुख नहीं मिलना चाहिए मॉम, प्लीज़। उसे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वो उस मकाम पर आकर ठहर गया था। वो उसकी वजह से बेबस हो जाता था। वो कंज़ा की खातिर रुक जाता था। फिर तुमने क्या सोचा है? उन्हें हदीद के लहजे में वाज़ेह टूट-फूट महसूस हुई थी। ज़ुख़्रफ़ के अलावा वो सिर्फ़ कंज़ा के लिए इस हद तक नरम था। आयशा जानती थी अगर ज़ुख़्रफ़ ना होती तो वो सिर्फ़ कंज़ा होती। कोई इंतकाम ना होता। उन्हें यकीन था कि कंज़ा ऐसी औरत है जिसकी खातिर इंतकाम छोड़े जा सकते हैं। जब कंज़ा के बारे में सोचता हूँ तो दिल चाहता है इंतकाम छोड़ दूँ। आयशा ने दम साध लिया। इस मकाम पर उन्होंने वाक़ई चाहा कि हदीद को कंज़ा से मोहब्बत हो जाती। छोड़ दो। क्या वो मज़बूत नहीं बन सकती? वो कर्बनाक अंदाज में बोला था। उसे कंज़ा को बचाना था, हमेशा बचाना था। आयशा को दुख हुआ। काश कंज़ा उनकी औलाद होती। कंज़ा और नूर की किस्मत एक जैसी है अदीब, वो गमगीन लहजे में बोली थी। अदीब ने फ़ोन बंद कर दिया। तो आज ये तय हुआ था कि कंज़ा की खातिर वो खुद को भी अजियत दे सकता था। दरवाजे की घंटी बजी तो उसने दरवाज़ा खोला। सामने वो इस्तादा था। उसके लब भिजे। इससे कबल के वो गुस्से में दरवाज़ा बंद कर देती, बुरहान ने कदम आगे बढ़ाते उसे रोका। हमें बात करनी चाहिए। हमें बात नहीं करनी चाहिए बुरहान, वरना इस बात में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। उसके तेवर ही बताते थे कि वो वाकई ऐसा कर सकती थी। बुरहान ने हाथ खड़े कर लिए। आई एम सॉरी मगर प्लीज़ बात को कर लो। यहाँ पास में ही एक अच्छा कैफ़े है, प्लीज़। नूर इनकार नहीं करना चाहती थी मगर जब निगाह उसके हाथ पर बंधी पट्टी पर गई तो उसने हामी भर ली। होटल के बिल्कुल सामने कैफ़े था। वो उसके हमरा चली तो एक मेज़ पर आमने सामने बैठ गए थे। बोलो। उस दिन मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए आया था। उसका अंदाज सुलझू था। तुमने मुझे समझाने का ठेका उठा रखा है। उसका अंदाज उसके गुस्से की बखूबी अक्कासी कर रहा था। बुरहान ने समझकर सर हिला दिया। दादा जान ने कहा था कि तुम्हें तलाक पर कायल करूं। सफ़ेद झूठ था मगर महारत तलाक की थी। ज़ुहफ कैसे यकीन ना करती। क्या? वो सदमे के ज़ेरे असर आई थी। वो चाहते हैं कि तुम्हारी और हदीद की तलाक हो जाए। क्यों? ये शदीद तरीन झटका था। वजह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो बड़े हैं तो कुछ ऐसा तो वो जानते होंगे जो यूं कह रहे हैं। वो कितनी देर बोलने के काबिल ना रही। तुम क्या चाहते हो? किस बारे में? मेरी तलाक के बारे में। कि तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा ही फैसला अहम है। दूसरे से वो सिरे से सारा इल्ज़ाम दनियाल वो सिरे से ही सारा इल्ज़ाम दानियाल कमाल पर डालकर खुद बरी ज़िम्मा हो गया था। वो भी इस अंदाज में कि ज़ुख़्रफ़ कुछ बोलने के काबिल ना रही। बाजू पर क्या हुआ? तुम्हारे बारे में हर खबर रखता हूँ मैं। तुमने इतनी भी तुमने तो इतना भी नहीं जाना कि मुझे गोली लगी थी। वो पुरशिकवा हूँ। व्हाट? उसका तो सर ही चकरा गया था। छोड़ो यार मुझे, मैं ही गलत हूँ। मगर तुम भी तो बेहिस हो। नूर धड़क उठी थी। बुरहान मुझे सच में नहीं मालूम था कि ये कब हुआ। मतलब यहाँ कैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका दिमाग शल होने लगा। ऐसे इंकशाफात पर वो नॉर्मल रहती तो हैरत होती। सारा सोशल सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है और सोशल मीडिया स्टार कह रही है कि उसे इल्म ही नहीं। मैं कैसे यकीन करूं? ज़ुहफ का सर शर्म से झुक गया था। क्या वो सच ही तो कह रहा था? गिला भी तो दुरुस्त था। उसे ख्याल रखना चाहिए था। आई एम सॉरी बुरहान, मगर मैं वाकई पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं। फ़रत के आने के बाद ये काम मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। बुरहान चुप रहा था। क्या फिर किसी ने तुम्हें टारगेट किया है या फिर ये मेरी वजह से हुआ है? उस रोज़ भी तो वो गोली मुझ पर ही चली थी। तुम्हें मैंने कहा भी था कि खुद को बचाना। वो बेहद परेशान थी। साबका वाक़या पूरी जज़ियात के साथ ताज़ा हो गया था। मैंने खुद को ही बचाया। देखो सही सलामत तुम्हारे सामने बैठा हूँ। उसने खुद की जानिब इशारा किया। वो सारी मुलाकात में पहली बार मुस्कुराई थी।
بہت کھوکھلی سی مسکان تھی، لیکن برہان کے لیے فی الحال یہی غنیمت تھی۔ دیکھو سونا، تم اچھے سے جانتی ہو کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی تیسرے انسان کی وجہ سے ہمیں کوئی چپلش ہو۔ بس وہ مجھے اچھا انسان نہیں معلوم ہوتا، میں صرف تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی نصیحت پر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، ذہن لفظ سونا پر اٹک گیا تھا۔ کسی نے کبھی میرا کوئی نام نہیں رکھا سوائے تمہارے۔ برہان کو سمجھ نہ آیا کہ اس نے اچانک موضوع کیوں تبدیل کیا ہے۔ جب سے مائدہ نے اسے زخرف کا مطلب بتایا تھا تو اسے سونا ہی کہتا تھا۔ ایک دن تو زخرف کی برداشت جواب دے گئی۔ سونا نہ سونا نہ کہا کرو مجھے، وہ چڑھ کر بولی۔ کیوں؟ میں تو یہی کہوں گا۔ وہ ضدی بنا تھا۔ کیوں کیوں کہو گے؟ اس نے کمر پر ہاتھ دھرے، چھوٹی سی ناک پر ڈھیروں غصہ تھا۔ کیونکہ مجھ سے تمہارا نام نہیں لیا جاتا، اتنا عجیب سا ہے۔ اسے نام سے زیادہ برہان کے چہرے کے زاویہ عجیب لگے تھے۔ میرے بابا نے رکھا ہے میرا نام، اور اسی لیے رکھا ہے کہ تم جیسے نالائق لوگوں سے لیا ہی نہ جائے۔ خیر تمہارے لیے آسانی کرتی ہوں، تم مجھے نور کہہ دیا کرو۔ ہاں اتنی تم پر نور، اس نے مذاق بنایا تھا۔ میں ممانی جان کو بتاؤں گی تم نے مجھے تنگ کیا ہے۔ جاؤ میری بلا سے جس مرضی کو بتاؤ۔ اس باہر دونوں کی نگاہوں نے ایک ساتھ منظر سے باہر دیکھا تھا۔ بچپن میں مجھے الجھن ہوتی تھی کہ تم مجھے سونا کہہ کر پکارتے تھے، مگر آہستہ آہستہ عادت ہوتی گئی۔ جانتے ہو یہ سب کیوں کہہ رہی؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولتے برہان کی جانب دیکھتے سوالیہ ہوئی تھی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ میں نہ چاہتی تو تم کبھی مجھے اس نام سے نہ پکارتے۔ تمہیں اجازت ہے کیونکہ تم خاص ہو، لیکن اسے برا مت کہا کرو۔ میں اس کے معاملے میں بے بس پھوٹ کر چلی گئی تھی۔ اس بار برہان کو غصہ نہیں آیا تھا، حیرت ہوئی تھی۔ محبت کی راہ پر نکلا مسافر محب کو پہچان لیتا ہے، وہ اسے بھی پہچان چکا تھا۔ اس نے ایک نمبر پر کال ملائی تھی اور اس کا پتہ کروایا تھا۔ جیسے ہی ایڈریس ملا وہ فوری اس جگہ پر آ گیا تھا۔ رات کے اس پہر پارک میں بیٹھا عفان اس کی اچانک سامنے آنے پر الجھن کا شکار ہوا تھا۔ وہ فوری اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، برہان نے سنجیدگی سے کہا، لیکن مجھے نہیں کرنی۔ محبت کی خاطر تو لوگ کافی کچھ کر لیتے ہیں۔ عفان رک گیا تھا۔ جسے چاہتے ہو اس کو پانے کے لیے کچھ کرو گے نہیں؟ تم ہوتے کون ہو مجھے مشورے دینے والے؟ اس نے جھک کر برہان کا گریبان تھاما تھا۔ تمہارا خیر خواہ ہوں، خود پر ضبط کرتے برہان نے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا، ورنہ دل تو کیا تھا کہ اس کا ہاتھ توڑ دے۔ اور یہ خیر خواہی کس خوشی میں؟ کیونکہ تمہاری حالت بھی میرے جیسی ہے۔ کیسے؟ اسے چھوڑو، میں تمہارے لیے ایک آفر لے کر آیا ہوں۔ برہان نے آنکھوں سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تجسس کے مارے بیٹھ گیا تھا۔ کیسی آفر؟ حدید کو منزل سے ہٹانے کی آفر۔ عفان کا منہ کھلا رہ گیا۔ تم حدید کو کیسے جانتے ہو اور اسے کیوں نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ بس اس نے مجھ سے کچھ بہت اہم چھینا ہے، میں اسی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری بات پر یقین کیسے کر لوں؟ وہ شکوک میں آ گیا تھا۔ یقین تو کرنا ہوگا، آخر کو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ عفان نے لب بھیجے، عجیب تو رہا تھا، محبت اور انسانیت میں الجھ گیا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ برہان اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ شروع میں تو سب ایسے ہی ہوتے ہیں، گناہ کرنے سے جھجکتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ہو جائے گا ضرور لو، مگر یاد رکھنا وقت گزر جائے تو انسان کھو بھی جاتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنے لباس پر لگی گرد جھاڑی، ایک نظر اس سیدھے سے انسان کو دیکھا تھا۔ اسے کنزا کی نظر میں عفان کو گرانا تھا اور عفان کے ذریعے حدید کو ہٹانا تھا۔ ایک تیر سے دو شکار کرنے تھے۔ تقریب رات کے وقت منعقد تھی۔ سارا انتظام ایک نامور ریسٹورانٹ کے روف ٹاپ پر کیا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے جب نور اور برہان ایک دوسرے کے ہمراہ وہاں آئے تھے۔ سفید شلوار قمیص پر ہلکی بھوری چادر کو نشان سے کندھوں پر جمائے اس نے ہر مرد عورت کو تھم جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ محض اس کا حسن تھا، یہ وقار اور تمکنت تھی، یہ اپنے ملک کے لباس کی شان تھی۔ برہان نے نگاہیں اس کے وجود کی تلاش میں گھمائی تھیں جس کی خاطر وہ یہاں آنا چاہتا تھا۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی، اسی کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر الجھن زدہ تاثرات سے زیادہ حیرت تھی۔ ہلکی گلابی رنگ کی لمبی پیروں کو چھوتی فراک پہن رکھی تھی۔ برہان نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا یہ روپ جان لیوا تھا۔ اسے دیکھ کر کنزا نے فوری اپنے لباس کو دیکھا۔ اسے معلوم ہوتا کہ وہ یہاں آ جائے گا تو کبھی اس رنگ کو نہ پہنتی۔ وہیں حدید نے زخرف کو دیکھا۔ وہ برہان کے ہمراہ آئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، برا لگا تھا، بے حد برا لگا تھا۔ وہ اس کے قریب بڑھا۔ زخرف کو لگا کہ وہ اس کے پاس آ رہا ہے۔ وہ سانس تھام گئی تھی، لیکن وہ اس کے قریب سے گزرتے آگے بڑھ گیا۔ زخرف نے لب کھینچے تھے۔ برہان کو نظر انداز کرتے کنزا اس کے پاس آئی تھی۔ اس رات اسے حدید کے ساتھ دیکھ کر وہ بے حد پریشان رہی تھی، مگر جب حدید نے اسے بتایا کہ وہ اتفاق سے ملی تھی اور اس کا پرس کھو گیا تھا تو حدید نے اس کی مدد کی تو وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ابھی چہرے پر مسکان سجائے کنزا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ برہان تو اسے نگاہ ہٹانے سے بھی گیا تھا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہا وہ اسے دیکھتا ہی رہ جائے۔ میں تم کو دکھتا ہوں کتنا خوبصورت؟ تم مجھ کو اپنی دید کے دوران دیکھنا۔
मैं पूरे ध्यान से तुम्हें देखूंगा और तुम एक सरसरी नज़र से मेरा ध्यान देखना। कंजा उस पर निगाहें गलत डाले बगैर आगे बढ़ने लगी जब बुरहान सीधा हुआ। तारुफ नहीं करवाओगी सोना? कंजा थम गई थी। ये अरे हाँ, ये कंजा है, इस कंपनी की चेयरमैन। इसने बुरहान को कि जिसे जानने के बायस वो यहाँ मौजूद था। कंजा ने उसे देखा था। वो आंखों में ढेरों सताइश लिए उसे ही देखने में मगन था। और कंजा बुरहान और किंजा, ये बुरहान है, मेरा कज़न। वो दरअसल मैं अकेली आ रही थी, मगर आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं। वेलकम। किंजा ने सर को खम देते दूसरे मेहमान की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। इब्राहिम की गैर मौजूदगी में सब उसे और हदीद को ही देखना था, और हदीद था जो पिछले 20 मिनटों से गायब था। वो एक तरफ अकेली ही खड़ी थी जब वो उसके बराबर आ खड़ा हुआ। किंजा, उसने अपना चेहरा हदीद की जानिब किया। इसे तुमने बुलाया है? इसका इशारा बुरहान की जानिब था, जिसके गिर्द एक अलग ही मजमा लगा हुआ था। वो मॉडल होता तो उसकी कंपनी तो खासा फ़ायदा देता। मेरे चेहरे पर क्या तुम्हें बेवकूफ़ होने की कोई अलामत दिख रही है? हदीद ने अचंभे से उसे देखा, फिर आहिस्तगी से सर नफ़ी में हिला दिया। नहीं ना, तो मैं इसे क्यों बुलाऊंगी? उसने सीने पर हाथ बांधे बेजारिये से जवाब दिया। उसे इस तकरीब में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। दिल अंदेशों से गिर रहा था। फिर ये यहाँ? मुझसे पूछ लो, इन्हें क्यों तंग करते हो? वो जाने कहाँ से नमूदार हुआ था। एक पल को किंजा बौखला गई। हदीद ने जबड़े भींचे, उसे देखा जो बालों को संवारता खासा पुरमसरत दिखाई दे रहा था। कंज़ा, तुम बाकी लोगों को देखो। अल्फाज भी हदीद के मुंह में ही थे। जब कंज़ा चली गई उसे घबराहट होने लगी। बुरहान से नहीं, वजह नहीं मालूम थी, लेकिन बेचैनी का शदीद दौरा था। चलो मैं सोना के पास चलता हूँ। कंज़ा के मंजर से हटते ही उसने हदीद को जलाना चाहा। मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। आगे हो तो आ गए हो तो बैठो, खाओ पियो और चले जाओ। उसके करीब झुककर कहने के बाद हदीद ने वहाँ से हट जाना मुनासिब समझा था, और बुरहान कमाल की शोहरत उसे अब इधर उधर जाने भी नहीं दे रही थी। कंसा ने इर्द गिर्द मेहमानों का हजूम देखते चेहरे पर दोबारा मुस्कान सजाई थी। वो खुशबाश थी, तकरीब का हिस्सा बनी रहना चाहती थी, मगर अचानक ही सीने में दर्द की लहर उठी थी। वो सीना मलते वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी। अंदर आई तो ज़ुखरफ को वहीं शीशे के सामने पाया था। ज़ुखरफ ने मुड़कर उसे देखा। उसी पल वो घुटनों पर हाथ रख के झुक गई थी। कंजा, वो घबरा कर उसके पास आई थी। आप ठीक हैं? कंजा ने नफ़ी में सर हिला दिया। मेरे साथ चलें। ज़ुखरफ ने उसे बाजुओं से थाम लिया था। उसे सहारा देते वॉशरूम से बाहर निकली और खाली हिस्से की जानिब आई थी। उसे कुर्सी पर बिठाकर वहीं दो जानों होकर बैठ गई थी। कंजा का सर झुका था और वो मुसलसल अपना सीना मसल रही थी। मुझे कुछ बताएं क्या हुआ? बल्कि रुके, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। कंजा ने नफ़ी में सर हिला दिया। बस बस घबराहट हो रही है। उसका सांस फूला हुआ मालूम हो रहा था। ज़ुखरफ को लगा कि जैसे उसे दमे का मसला कुछ और मसला लग रहा है। डॉक्टर आकर देखेगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसने तेजी से फ़ोन निकाला। उसे एम्बुलेंस को कॉल करनी थी। वहीं हदीद किसी मेहमान को छोड़कर वापस आ रहा था जब उसकी निगाह उन पर गई थी। वो तेज़ कदमों से उन तक आया था। वो हनूज सर नीचे किए लंबे और गहरे सांस भर रही थी। हदीद बेसाख्ता उसके पास बैठा। कंजा, क्या हुआ इसे? एक नज़र एक नज़र कंजा पर डालकर ज़ुखरफ से सवालिया हुआ। परेशानी से उसकी आवाज़ भी कँपकँपा सी गई थी। एक पल को ज़ुखरफ से बोला ही ना गया। मुझे खुद नहीं मालूम। वो वॉशरूम में। हदीद ने उसकी बात मुकम्मल ही ना सुनी। कंजा, हे कंजा, उठो। हदीद ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। ज़ुखरफ पीछे हट गई थी। साथ चलो, उसने मुड़कर कहा और कंजा को लिए होटल के कमरे में आ गया था। इस सारे अमल में कंजा तकरीबन नीम बेहोश सी थी। उसके वजूद का सारा बोझ हदीद पर मुंतकिल था। ज़ुखरफ चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन वो उनके पीछे ज़रूर रही थी। इसके पास रुकना, मैं डॉक्टर को लाता हूँ। उसे बेड पर लेटाकर वो बाहर चला गया। चंद मिनटों बाद ही डॉक्टर उसके हमरा था। डॉक्टर ने कहा कि मेदे का मसला है। बदहजमी के बायस चक्कर आ गए, लेकिन हदीद मुतमईन नहीं दिख रहा था। कंजा अपनी सेहत का ख्याल रखती है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि तबीयत अचानक इतनी ख़राब हो जाए? उसके जवाब पर डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी कि कभी कभार ऐसा हो जाता है। डॉक्टर चला गया। ज़ुखरफ वहीं कमरे के एक तरफ दीवार से पुष्ट जोड़े खड़ी उनको देखती रही। हदीद ने उसकी जानिब देखा तो वो गुमसुम दिखाई दी। इससे कबल कि वो उसके पास बढ़ता कंजा ने आंखें वाह की। उसके लबों से सरगोशी की उसके लबों से कोई सरगोशी हुई थी। हदीद फौरन उसके पास झुका था। क्या महसूस कर रही? उसके लहजे में वाज़ेह परेशानी थी। बेहतर, परेशान नहीं, बस थकावट हो रही थी। कंजा ने उठना चाहा। हदीद ने उसकी कमर के पीछे से तकिया दुरुस्त किया था। तो उन पर नज़र डालते बाहर निकल आई थी। उसे मज़ीद देखा नहीं जा रहा था। उसे हदीद की फ़िक्र की आदत थी। वो उसे अपने लिए ही देखती आई थी। आज किसी और के लिए देखी तो दिल उजाड़ सा हो गया था। तुम यहीं आराम करो, मैं मेहमानों को अलविदा कहकर आता हूँ। मैं ठीक हूँ, साथ चलती हूँ। खामोशी से लेटी रहो, बल्कि रुको, मैं सुजीन से कहता हूँ कि वो तुम्हें ड्रॉप कराए। उसने कॉल मिलाई थी। अगले 2 मिनटों में सुजीन और डेज़ी उनके पास थी। उसे हिदायत देकर उसने कंजा को घर रवाना किया, फिर मेहमानों को भेजा था। तकरीब इख्तिताम पसीर हुई तो बुरहान उसके करीब आया, जो खाली जगह को देखते खुद भी खाली सी दिख रही थी। बुरहान ने गौर किया, वो सोगवार सी थी। जाने उसे क्या हुआ था? चलें सोना,
मुझे हदीद के कंजा के लिए फिक्र देखकर उलझ सी गई थी। बुरहान के पुकारने पर चौंकी। हाँ चलो। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बुरहान उसे लिए बाहर चला आया। वो दोनों गाड़ी के पास आए थे जब अचानक किसी ने उसका हाथ थामा। ज़ुल्फ़ ने खींचकर पीछे को वार किया और उसकी अंगूठियों से भरा हुआ हाथ हदीद के चेहरे पर लगा। आह, ये क्या हो गया? ऐसे कौन करता है? उसने बेसाख्ता हदीद के चेहरे पर हाथ लगाए जहाँ अंगूठी लगने के निशान पड़ गया था। बुरहान फौरी उसके पास आया था और उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया, लेकिन हदीद ने उसका हाथ थाम लिया। चलो मेरे साथ। कितना मलकियत भरा लहजा था उसका। क्यों? जवाब के बगैर नहीं जाओगी? हदीद ने हदीद ने जिस अंदाज में पूछा था, ज़ुहरब की निगाहें उसके चेहरे से पलट ना सकी थीं। बुरहान ने दांत पीसे। सोना, हमें वापस जाना है, काफ़ी लेट हो गया है। उसने याद दिलाना चाहा, शायद उनके दरमियान रकावत का जहर घोलना चाहा था। मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभाल लूंगा। हदीद ने जिस अंदाज में कहा था, एक पल को बुरहान को चुप्पी लग गई थी। ज़ुल्फ़ ने हदीद को देखा। उसकी सी आंखों में इल्तिजा थी। ज़ुल्फ़ कैसे रद्द कर देती? बुरहान को जाने का कहकर वो खुद हदीद की मदद में उसकी गाड़ी के पास चली आई थी। उसे बैठता ना देखकर हदीद ने दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने का इशारा किया। कंजा से आंखें उठाकर उसकी स्याह आंखों में देखा था। मंजर दिलकश होता अगर दरमियान में कंजा का जिक्र ना होता। क्या कंजा? उसने कम फहमी से पूछा। ये उसकी जगह है, वो फ्रंट सीट की तरफ देखते हुए कह रही थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हदीद को उसकी गायब दिमागी की वजह समझ आ गई थी। वो तुम्हारे साथ आई होगी। उसने मंतक पेश करनी चाहिए। हदीद ने कनपट्टी मस ली थी। इसके पास उसकी अपनी गाड़ी मौजूद है, लेकिन मेरा दिमाग खराब मत करो ज़ुहरब। खामोशी से बैठ जाओ। उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा था, ऐसी हालत पहले कहाँ हुई थी। उसके बैठ जाने के बाद से दूसरी जानिब आया और बैठने लगा जब उसकी निगाह बुरहान पर गई थी। हदीद ने उसे गाड़ी पीछे हटाने का कहा। हालात का तकाजा था कि वो हदीद की बात मान गया था। गाड़ी ड्राइव करते अभी 2-4 मिनट ही हुए थे कि सामने के साथ बैठी स्याह सूट वाली लड़की की आवाज़ उभरी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। वो उसे नहीं देख रहा था। क्यों? घर क्यों होते हैं? उसने देख लिया था। दोनों की आंखें स्याह, दोनों के लिबास स्याह और रात की स्याही। जी चाहा कि बाकी सब फना हो जाए, मगर मैं होटल में रह रही तो मुझे होटल ड्रॉप कर दो। अगर ना करूं तो मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। हदीद ने बिना बहस किए उसके होटल के बाहर गाड़ी रोकी। तो ने हैरत से उसे देखा। इन तासुरात को हफ्स करते हुए उसके करीब झुका और मैं ज़मीन पर बोसा दे दिया था। वो सुन हो गई। मेरी हो, मेरे साथ रहा करो। हैंडल लॉक पर रखा उसका हाथ ढलक गया था। हदीद के लबों पर दिलकश मुस्कान उभरी थी। अब रुकोगी तो दिल करेगा कि रुक ही जाओ। दिल की लहजे पर वो झिझक गई। अजलत में बाहर निकलना चाहा तो पहले बैग गिर गया, फिर उड़ना चाहा तो जुल्फों ने रास्ता मजदूर कर दिया था। हदीद ने झुककर उसके स्याह बालों को पीछे किया था। मंजर वाज़ेह हुआ तो बैग उठाकर फ़ोन गिरा बैठी थी। हदीद ने अपने पैरों की जानिब देखा। फ़ोन कैसे लुढ़क कर उसके कदमों को सलामी देने आया था। उसने झुककर फ़ोन उठाया और उसके सामने किया था। उसके हाथ से फ़ोन झपटते वो तेज़ी से बाहर निकली थी। अजीब शर्मिंदगी सी होने लगी थी। रोना आ रहा था। वो तेज़ी से अंदर को भागी। हदीद का कहका गूंजा था। इस रात के बाद वो वाक़ईतन बीवी बन गई थी। उसकी बातों पर शर्माने लगी थी। सबसे बड़ी बात, वो उसकी बात सुनने और मानने लगी थी। उसके वजूद में सरशारी उतर आई थी। सूफिया उसे झूले दिखाने के लिए उसके घर आई थी। तो मालूम हुआ कि आजकल उसकी तबीयत नासाज है। इसका दिल बहलाने के लिए वो उसे अपने साथ लिए बाहर निकल आई। उसका इरादा लॉन्ग ड्राइव का था। वैसे भी आज मौसम खासा खुशगवार था। वो उसे यूं घर में बेजार होने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। कंजा ने ड्राइविंग सीट संभाली। उसे गाड़ी खुद ड्राइव करना पसंद था। सूफिया की हल्की फुल्की बातों का जवाब देते उसे अचानक गाड़ी रोकनी पड़ी थी, क्योंकि किसी ने हाथ लहराते हुए उन्हें रुक जाने का इशारा किया था। गाड़ी के रुकते ही वह वजू ड्राइविंग सीट के करीब आया था। कंजा ने शीशा नीचे किया और खिड़की के करीब झुके मर्द को देखकर बेजार होकर आंखें मीची। फिर खुद को तैयार करके दोबारा आंखें वाक की थी। लिफ्ट मिल सकती है? वो नहायत मुअद्दब अंदाज में गुजारिश कर रहा था। मैं स्टॉकर को लिफ्ट नहीं दिया करती, उसने टका सा जवाब दिया। जाने के शख्स हर बार उसके रास्ते में क्यों आ जाता था? क्या इसे कोई काम नहीं था? कहने को वो सियासत में था, गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस था, मगर फिर भी इतना वक्त कैसे निकाल लेता था? आज से इब्तिदा कर ले। इसका एतमाद काबिल दीद था। मुझे ज़रूरत नहीं, उसे रत्ती भर परवाह न थी, मगर मुझे तो है। अपने मुल्क से होने का ही मार्जन दे दें। आप पाकिस्तान से हैं? सूफिया ने उसके लिबास को देखा था। वो पाकिस्तानी अंदाज के लिबास में मलबूस था। गहरे नीले रंग की शलवार कमीज पर गहरा नीला कोट पहन रखा था। बुरहान ने हाँ में सर हिला दिया। बैठे ना फिर। उसने पुरजोश होकर पिछली सीट की जानिब इशारा किया। बुरहान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उजागर हुई थी। कंजा का पारा बढ़ गया। सूफिया, जिस अंदाज में कंजा ने उसका नाम लिया था, कोई और होता तो एक बार कंजा के चेहरे के सर तासुरात देखता, लेकिन वो तो पिछली सीट पर बैठते बुरहान की जानिब देख रही थी। ये रंग मर्दों पर किस कदर जचता था। वो अपने हस्बैंड के लिए बिल्कुल ऐसा ही सूट खरीदने का सोच रही थी, और कंजा तो बुरहान की डिटाई पर कुर्ती जा रही थी। यार, तुम्हारे मुल्क का है, और हसीन भी तो देखो कितना है। धीमी सरगोशी से बुरहान ने अपनी हंसी जब्त की थी। वजह कंजा के तगैर ज़दा तासुरात थे, जिसके बायस उसने
بیک پہ مرر سے اس کی جھلک دیکھی تھی۔ بھاڑ میں گیا اس کا حسن۔ اس کی جانب دیکھتے کنزا نے اونچی بڑبڑاہٹ کی تھی۔ وجہ صاف تھی، وہ اسے سنانا چاہتی تھی۔ دیکھیں یہ تو جاتی، اس نے صوفیہ کی دوست کی شکایت کی تھی۔ صوفیہ کی دوست نے آنکھیں چھوٹی کیے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے انداز پر فدا ہوا تھا۔ کاش تو بھی ہو سراپے جستجو میرے لیے، تو پھرے دیوانگی سے 400 میرے لیے۔ میں سمندر کی طرح خاموش بیٹھوں منتظر، تو چلے کوسار سے مثل آپ جو میرے لیے۔ اس کے دل نے التجا کی تھی، مقابل کو چندہ پروانہ تھی۔ میری دوست کو پاکستانیوں سے کچھ صدا واسطے کا بیر ہے، اس لیے یہ پاکستان والوں سے خاصی بے مروت ہے۔ کنزا کی دوست نے اس کی طرف سے صفائی دینا چاہی۔ او آئی سی، برہان کے لبوں کو گول کرتے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ مجھے پاکستان والوں سے کوئی مسئلہ نہیں۔ کنزا نے صوفیہ کی ساری صفائی پر مٹی پھیر دی تھی۔ ہاں اسی لیے اتنے سالوں سے پاکستان نہیں گئی۔ بوتوں میں وہ خاموش ہو گئی۔ اسے حدید کا نام نہیں لینا تھا۔ اس نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ برہان اور صوفیہ میں ہلکی سی گفتگو ہوئی تھی۔ بس یہیں اتار دیں۔ کنزا کے خطرناک تیور دیکھ کر اس نے نکل جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ جس طریقے سے وہ ڈرائیو کر رہی تھی اسے امید نہیں تھا کہ اگر وہ مزید بیٹھتا تو گاڑی ٹھوک دیتی۔ نہیں، آج کا ڈنر میری طرف سے ہے اور آپ بھی شامل ہوں گے اس میں۔ صوفیہ خاصی مروت والی لڑکی تھی، یا شاید یہ کہنا درست ہوگا کہ صوفیہ کو پاکستان کے نوجوان سیاستدان سے بات کرنے میں خاصا لطف آ رہا تھا۔ البتہ کنزا لب بھیجے بیٹھی تھی۔ دیکھیے ہو تو میں جاؤں، مگر یہ محترمہ مجھے شہید ہی نہ کر دیں۔ دیکھیں ذرا کس قدر خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں۔ ارے اس کی نگاہ پر مت جائیے گا، یہ تو سویٹ ہارٹ ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ کیا؟ اب آپ کہہ رہی ہیں تو ہوں گی، ہے نا محترمہ؟ کنزا نے دانت پیسے تھے۔ تمہیں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کنزا نے اسے ساتھ لے جانے سے انصاف انکار کر دیا تھا، ساتھ ہی گاڑی روک دی جو اس کی برداشت کی حد تھی۔ صوفیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ میڈم کو میرا بیٹھنا پسند نہیں ہے، میں اتر جاتا ہوں۔ کتنی معصوم شکل بنائی تھی اس نے، صوفیہ کا دل پسیج گیا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ویڈیو میں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اس کے ایپیسوڈ کے اگلے پارٹ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔